Good afternoon, ma'am. So today we are going to study our next unit, that is common functions in Excel. Last time we had ended up with validating and protecting. I think validation we have done and protecting we had left. So I will tell you the part of protecting, also how to protect sheets or how to protect cells. Okay. So let me switch to the screen. I hope Excel sheet दिख रहा है आपको. Excel sheet दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So first I will complete the left part, that is protecting sheet, and then we will continue with these common functions and all. So when you want to protect sheet means you are not going to allow to anyone to change, or suppose you are allowing changes to anyone, then also you can track those changes in Excel. So how you can do that? You can switch to uh, review group. See, I need to select highlighter. See, from this home, insert, page layout, formulas, data, and now this is review. Okay, wherein you can find the changes tab. There are three different tabs, 3 to 4 actually. Proofing, language, comments, and changes. Okay, these three we are going to study in next unit: proofing, language, and comments. That is how to create comment, how to translate to other language, how to apply proofing. Okay, this is our next unit, and in this unit we are going to study common functions. Before that, जो पहले का पार्ट है वो प्रोटेक्टिंग शीट, उसके लिए चेंजेस. तो रिव्यू टैब में जाना है आपको. जैसे होम, इंसर्ट ऐसे टैब है, उसमें रिव्यू टैब में जाना है और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है. सो यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द शीट फॉर चेंजेस. ओके, सो हियर इट विल आस्क यू password to unprotect sheet. You can protect worksheet and contents of locked cells. Okay, and then you can select locked cells, select unlocked cells also. You can format cells और फॉर्मेट कॉलम्स, ये सबको लॉक कर सकते हो. उसके लिए पासवर्ड डाल सकते हो. कोई डिलीट नहीं कर सकता ऐसे आपको लगता है तो डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम्स, इसको भी आपने यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया. सपोज आई एम गिविंग पासवर्ड IMRDA. It will ask you to re-enter the password IMRDA. पासवर्ड दे दिया. Now suppose I will try to make changes here. The cell or chart you are typing or trying to change is on a protected sheet and it cannot be changed. To make changes, click unprotect sheet in review tab. ऐसे ये पूछता है. Okay. Now if you know the password, you can unprotect it. If I will click on unprotect, यहाँ पे कोई भी आपको change करना है, you cannot change this sheet क्योंकि इसने दिया ही है, ये शीट प्रोटेक्ट किया है हमने. हम अगर यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ये शीट में कुछ प्रॉब्लम नहीं.
बट हमने यही शीट पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करें इट विल नॉट एक्सेप्ट. Okay, so to unprotect it, you have to click on unprotect. At the same tab, review tab, again at the same place, changes, protect sheet जहाँ पे था वही वो unprotect हो गया है. आप एंटायर वर्कबुक, मतलब ये सारे शीट आपको प्रोटेक्ट करने हैं तो भी आप वो एंटायर वर्कबुक भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. बट अभी हमने बस एक फंक्शन वाला शीट प्रोटेक्ट किया है, बाकी के शीट में हम चेंजेस कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं, दोज आर अलाउड. ओके, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के लिए शायद हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो ये सिलेक्शन के बाद ये डिसेबल ही कर देता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन. ठीक है. So when you want to unprotect it, again go back to review tab. Review tab पे आए, unprotect को click करो. It will ask you password. Suppose you will enter wrong password. The password you supplied is not correct. Verify, caps lock वगैरह ऐसे पूछता है. But if you don't know password, you cannot unlock it. Okay, this is how you can protect this sheet. And to unprotect, you can use password. I'm using password IMRDA. So now see, I can make changes. Some of these three. Okay, or common functions. Like this, I can make changes. Okay. Suppose I will try to lock any particular field, like यहाँ से आप format cell में जाके protection में जाके lock पे click कर सकते हो. But you cannot lock until you will protect it from here. यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है रिव्यू से, तब तक ये सेल लॉक भी नहीं हो जाता. ठीक है, आपको सेल भी लॉक करना है तो भी शीट यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे आके आपको अलाउ करना चाहिए प्रोटेक्ट शीट को. ठीक है, तब भी आप चेंजेस कर सकते हो. नाउ हाउ यू कैन ट्रैक चेंजेस, यू कैन हाईलाइट changes after protecting a sheet, or once you shared a sheet also track changes while editing. Okay, तो ये हाईलाइट कर सकते हो आप चेंजेस. इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, तो अभी हमें शेयर नहीं करना है ना, तो चेंजेस को हाईलाइट करना है. कैन अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस. हम रेंज दे सकते हैं कि यूजर्स ये चेंजेस यहाँ से रेफर्स टू सेल रेंज 1 आपने बोला कि क्या चेंज कर सकते हैं, तो टाइटल में चेंजेस हम अलाउड कर देते हैं. चलो, रेंज पासवर्ड, इसको हमें अगर पासवर्ड देना है तो अगेन IMRDA दिया. ओके, IMRDA अप्लाई. ओके, नाउ हमने प्रोटेक्ट तो किया ही नहीं ना इसको. कंट्रोल Z, प्रोटेक्ट IMRDA. Common functions. So a cell you are trying to change is a password protected. एक पर्टिकुलर सेल को ही हमने रेंज में चेंज करने के लिए वो प्रोटेक्ट किया है, एक सेल प्रोटेक्ट किया है. ठीक है, पहले इंटायर शीट हमने प्रोटेक्ट किया था, अब एक सेल प्रोटेक्ट किया है. तो इसको अगर हमें प्रोटेक्शन से निकालना है तो हमें पासवर्ड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं. कॉमन फंक्शंस for data analysis. Now I can make changes. Okay, whereas here if you are going to change somewhere else, अगर आप changes करते हो तो वो change allowed नहीं है, क्योंकि उसमें हमने change allow नहीं किया. ये नाम मुझे change करना है, accept नहीं करेगा. इसके लिए मुझे sheet को unprotect करना पड़ेगा.
तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट करके फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. So this sheet will become unprotected now. Is it clear? Protection? Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let's start new unit, common functions. So common functions for data analysis to be used. There are different functions. We can use different functions like today, now, date difference से start हुए है ये function. So suppose I'm going to display, I'm going to use today function. That means how you can use these functions. You can simply type equal to and you can start typing function name. It will give you the function name and its use also. It returns current date, current formatted date as per date is formatted. Or you can also search these in formulas. Okay, date and time में जाके आपको यहाँ से ये date today function यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, this is how you can come to, you can switch to formulas and you can get different functions like auto sum functions are there, or recently used functions like subtotal, month, work day, day, end date are ये all these functions we have used recently. और फाइनेंशियल फंक्शंस, अकाउंट्स में जो फंक्शंस यूज किए जाते हैं वो भी फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. सो all those IRR, NPV, PV, discount. Okay, so such type of financial functions also you can use. Logical like and, false, if error, if not applicable, not, or true, XOR. So all these logical functions also you can use. String functions, we have seen some of these: concatenate, mid, lower, uppercase, replace, substitute, proper, all these functions last time. Okay, date and time today also we have seen, and how to format date also we have seen. Then also with these common functions, let's see these functions. लुकअप में वी लुकअप, एच लुकअप आपको सिलेबस में है ही, आगे जाके हम देख रहे हैं वो. पहले हम कॉमन फंक्शन स्टडी कर रहे हैं. तो कॉमन डेट को डिस्प्ले करने के लिए आपको टुडे फंक्शन यूज करना पड़ता है. सिंपली टुडे टाइप करके फंक्शन सिंबल, कोई भी सर्कुलर पैरेंथेसिस ये जो होता है इसको, ये सिलेक्टेड पार्ट, स्टार्टिंग सर्कुलर पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग, दिस डिनोट्स टू फंक्शन. ओके, तो इक्वल टू डाल के आप फंक्शन का नाम स्टार्ट करते हो और ये फंक्शन पैरेंथेसिस देते हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया. तो इट विल डिस्प्ले टुडेज डेट. ओके, it will return today's date. Now if you are going to display now instead of today, now also returns the current date and time formatted as a date and time. Now the difference is today में just date display कर रहा है, whereas now में it is displaying current time also. अभी का टाइम क्या है, तो ये सिस्टम का टाइम है 13 hours and 17 minutes, तो उतना वो टाइम वहां पे देगा. Now there is date difference function. Date difference. So we forgot equal to symbol. Date difference. आप यहाँ पे date से start भी करो. So you need to select two different dates actually for that. Suppose before that, if I will assign any date here, like first in 2021, and now I want to check the date difference between these two dates. So date
difference is this date and this date. Let me check the correct spelling of the function given. डेट DATE DIF तक की है. So equal to DATE DIF date difference between these two dates. Start date, end date, and we need to enter यूनिट की डिफरेंस किस में चाहिए आपको, डेज में, ईयर्स में. सो यू वांट इट इन डेज. Suppose I will change it in form of years and y, and suppose there is no date difference.
So it will give you difference like this. 1 अक्टूबर 2020 से लेके 13 अक्टूबर 2020 तक ईयर्स में हमने डिफरेंस लिया तो ये ऐसे आया, और डेज में अगर लिया तो 377 डेज के एग्जैक्ट सेम डेट लेते हैं यहाँ पे। अभी 13 अक्टूबर ही लेते हैं 2020 का भी, so it will give you 365 days of a year. Like this you can check date difference. Okay, this is how you can handle today, now and date difference common functions. And I think I have shown you date series number और date series दिखा है ना मैंने आपको, how you can use date series दिखा है सीरीज क्रिएट करते टाइम। फिर से किसी का नाम लेके पूछना पड़ेगा। ऋषिता, स्नेहल, स्नेहल गौरी। यस मैम। डेट का सीरीज पढ़ाया क्या आपको? पहले सीरीज पढ़ाया वो तो याद है ना? हाँ मैम। सीरीज नंबर 1 2 ऐसे पढ़ाया, याद है ना? 1 2 और इसका सीरीज क्रिएट कर सकते हो ऐसे। अगर हाँ आपने मैम, जस्ट 1 2 ऐसे किया और 2 को सिलेक्ट करके स्टार्ट किया तो इट विल ड्रैग जस्ट 2, but if you want 1 2 and furthermore series to be continued with same difference, तो आपको दो नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, 1 एंड 2 दोनों को सिलेक्ट करना है एंड फिर ड्रैग करना है। तो ऐसे ये पढ़ाया मैंने आपको। IMRDA 01 आपका अगर रोल नंबर है तो यहाँ पे मैंने ड्रैग किया IMRDA 02, तो ऐसे ही मुझे सीरीज चाहिए, ऐसे IMRDA 11 ऐसे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं हम, या फिर कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस देना है 0.25 0.50, तो अब इन दोनों में सिर्फ 0.25 का डिफरेंस है, तो ऐसा ही सीरीज मुझे आगे कंटिन्यू करना है लाइक दिस। सपोज यू वांट टू क्रिएट डिक्रीजिंग सीरीज लाइक 3 है एंड 2.75 है, तो अब इसमें 0.25 कम होते जाना चाहिए। ऐसा भी सीरीज आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली ये जैसे एक सीरीज हो सकता है विथ स्ट्रिंग भी, ऐसे भी सीरीज कर सकते हो। ऐसे ही आप डेट का भी सीरीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव एंटर्ड 1/1/2021, अब आपने सेकेंड इसको ड्रैग किया तो क्या होगा कि ये ऐसे सीरीज क्रिएट होगा। ठीक है, ये डेट का सीरीज है। नंबर्स में कैसे होता है, आप नंबर्स का डिफरेंस ऐसे भी डाल सकते हो, 100 200 200 300 ऐसे भी हो सकता है, या 1001 1002 ऐसे सीरीज चाहिए आपको। दोनों नंबर सिलेक्ट करो, आगे सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अब डेट सीरीज जो होता है, दिस इज डेट सीरीज। इसमें ऐसे डेट सीरीज कर सकते हो, या फिर आपने ये नंबर ये डेट यहाँ पे कॉपी किया, अब इस डेट का फॉर्मेट चेंज किया आपने, डेट में जाके इसको लॉन्ग डेट बनाया, अब इसको आप सीरीज बनाते हो तो ये ऐसे ही फॉर्मेट में कॉपी हो जाएगा। ओके, अब और क्या डेट में हो सकता है कि अगर आपको डेट कस्टमाइज करना है तो भी आप आपके हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे दिया यही डेट है और डेट का फॉर्मेट चेंज करना है आपको, मोर नंबर फॉर्मेट में जाके डेट, तो यहाँ पे आपको डेट कस्टमाइज करना है। यू कैन चेक अवेलेबल ऑप्शंस।
और कस्टम डेट, कस्टम में जाओ, लास्ट में है डेट का लास्ट ऑप्शन है कस्टम। यहाँ पे नंबर डेट सिलेक्ट किया, इसकी जगह कस्टम सिलेक्ट करो। कस्टम में जाओ, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसमें से आपने बस MMYYY मतलब जनवरी 2021 ऐसे किया, तो इसका आपने सीरीज स्टार्ट किया, तो ये ऐसे सीरीज स्टार्ट हो गए। जान के बाद फरवरी आता है, तो मार्च अप्रैल ऐसे। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डेट सीरीज। ओके, नाउ let's come back to common functions. How you can create common functions? Suppose you want to calculate sum, तो हमने सम फंक्शन बहुत बार देखा है कि एक पर्टिकुलर रेंज का सम कैलकुलेट करना है आपको। जैसे अदिति के मार्क्स का सम कैलकुलेट करना है, तो अदिति के MCA के मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन से लेके डेटा एनालिसिस करंट अफेयर्स तक के सारे मार्क्स के सम चाहिए, तो सारे मार्क्स का रेंज मैंने सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्शन करना कैसे है, देखो यहाँ पे इक्वल टू क्लिक किया, आपको मेरा कीबोर्ड नहीं दिखाई देता, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि आपको इसके बाद इक्वल टू क्लिक करने के बाद ये सेल सिलेक्ट करना है और शिफ्ट भी क्लिक करना है। शिफ्ट क्लिक करके रखा है मैंने और अभी इसको सिलेक्ट किया 78 को। अब शिफ्ट को मैंने छोड़ा नहीं है, शिफ्ट की प्रेस करके ही रखा है। और लास्ट का सेल कौन सा है, CA करंट अफेयर्स। इतना सम मुझे चाहिए। ओके, तो आई कैन एंटर दिस सम। ये रेंज सिलेक्ट हुआ एक्चुअली, बट ये सम के लिए सम फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सम फ्रॉम E7 to M7, तो ये सिलेक्ट किया, आपको उसका टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी यही किया है। जनरली हम सम करते हैं तब कैसे करते हैं कि ये सिलेक्ट करते हैं, इतना रेंज सिलेक्शन कैसे करना है, 78 को क्लिक करो, शिफ्ट पकड़ो, 92 को यहाँ के लास्ट सेल को क्लिक करो, होम में जाओ या फिर फॉर्मूलाज में आओ, ऑटो सम में पहला सम फंक्शन ही मिल जाता है आपको, इसको क्लिक कर सकते हो। और यू कैन सिंपली टाइप इक्वल टू सम एंड यहाँ से सिलेक्ट करो, शिफ्ट पकड़ के रखो लास्ट सेल, तो पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। रेंज सिलेक्शन के लिए शिफ्ट पकड़ के रखना है बस। ओके, फिर इसको आप कॉपी कर सकते हो, रिलेटिव सेल्स के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सम। नाउ यू कैन आल्सो कैलकुलेट सिमिलरली मैक्स। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे एक रिकॉर्ड में मैं आपको दिखाऊं, मैक्स सिलेक्ट करना है आपको। तो या फिर ऐसे करते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस मैक्सिमम मार्क्स किसको है वो देखते हैं, ये रेंज से टोटल किसका मैक्स। तो 759 इज मैक्स, तो अदिति का स्कोर मैक्सिमम है। ओके, बट अदिति को किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए है ये चेक करना है आपको, तो आप ये मैक्स फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैक्स ऑफ रेंज, फिर से शिफ्ट पकड़ के रखो, करंट अफेयर्स तक मार्क्स सिलेक्ट करो, तो इसको 97 मार्क्स मैक्सिमम है। ओके, वैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, हमें मिल जाएगा 85 88। सिमिलरली यू कैन गो फॉर मिनिमम। मिनिमम मार्क्स कितने हैं चेक करना है, सो इक्वल टू मीन फंक्शन, ये मीन है। तो नंबर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। रेंज सिलेक्ट करने के लिए पहला सेल क्लिक किया, शिफ्ट पकड़ा, लास्ट का सेल क्लिक किया, पैरेंथेसिस कंप्लीट किया, एंटर मारा, तो 65 मिनिमम मार्क्स है इसमें, उसको 97 मैक्सिमम मार्क्स है। यू वांट टू चेक एवरेज या परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज दिया, तो हम यूजुअली परसेंटेज कैसे करते हैं, मुझे अगर इसका परसेंटेज, तो टोटल डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, ये हमारा प्रोसेस है। टोटल डिवाइडेड बाय आउट ऑफ कितने, टोटल आउट ऑफ 900 स्कोर है 759,
तो हमने क्या किया, 759 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 किया, तो हमें मिला इसका परसेंटेज। बट वी कैन कैलकुलेट एवरेज ऑफ मार्क्स डायरेक्टली, टोटल वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एवरेज करना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, AVG फंक्शन है, एवरेज फंक्शन, सॉरी AV एवरेज ही नाम है फंक्शन का, एवरेज। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, सेम सम की तरह, बस फंक्शन का नाम चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ सम एवरेज फंक्शन यूज करना है, इंस्टेड ऑफ सम मैक्स मीन ऐसे यूज करना है। तो यू कैन गेट वैल्यूज, रिलेटिव वैल्यूज, ओके, ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मैक्स, मीन, percentage. These are some common functions which are related to auto sum, which we usually use. ये यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसमें और एक है काउंट नंबर्स, ओके। तो काउंटिंग के सारे मैंने सेपरेट किए हैं इधर, ठीक है। समझो मुझे मिनिमम इसमें से सिलेक्ट करना है, मिनिमम मार्क्स किसको है इन तीनों में, तो आई कैन गो विथ मिनिमम ऑफ टोटल और मिनिमम ऑफ परसेंटेज। 625 आद्या जिसका नाम है उसको मिनिमम मार्क्स है, ओके। एंड एवरेज स्कोर क्या है वो मुझे अगर देखना है, तो सबका एवरेज, क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, आई कैन कैलकुलेट एवरेज ऑफ दिस एवरेज। एवरेज 75.96 स्कोर है, मतलब 76 तक अराउंड एवरेज परफॉर्मेंस है क्लास का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज सम, मैक्स, मीन, एवरेज फंक्शंस। नाउ लेट्स सी काउंट रिलेटेड फंक्शंस। ये फंक्शंस क्लियर हुए आपको, सम, मैक्स, मीन, एवरेज? Yes, ma'am. Okay, now let's continue with count. Count counts the number of cells in the range. जो भी आप रेंज सिलेक्ट करते हो उसके सेल्स का नंबर कितना है, मतलब आपको चेक करना है कि कितने सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आप काउंट कर सकते हो, सिंपली काउंट फंक्शन दिया है, क्लिक किया, यहाँ से CA तक सब्जेक्ट के नाम है आपको पता है, तो आपने सिलेक्ट किया, आपको पता चला कि 9 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब काउंट इफ, यहाँ पे काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एस, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। तो काउंट इफ काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन द रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब भी वो रेंज में से, जैसे काउंट इफ रेंज दिया मैंने 78 से लेके 92 तक, और क्राइटेरिया दिया कि लेस देन 75 मार्क्स किस में है वो चेक करना है आपको। तो दो नंबर्स ऐसे हैं जहाँ दो सब्जेक्ट है जहाँ पे लेस देन, आप चेक करके देखो, 75 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 65 इज ओके, तो ये पहला हो गया, इसको हमने हाईलाइट किया। 96 नहीं है, ये भी 75 से नीचे है, तो दो हो गए, 3 4, ये नहीं। तो इस रेंज में दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको 75 के नीचे मार्क्स है, ओके। दिस इज हाउ यू कैन यूज काउंट इफ। यू कैन ऑल्सो अप्लाई कि लेस देन 35 होगा तो फेल होगा करके, ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। या सपोज आपका 50 का पासिंग है एंड किसी को 45 मार्क्स है, जैसे सेकेंड रिकॉर्ड में है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज सिलेक्ट हो गया,
इसमें क्राइटेरिया दिया कि इट इज लेस देन इक्वल टू 50 सॉरी, तो ऐसा एक है, तो कौन सा है देखो, 52 नहीं 45, तो ये 45 मार्क्स है, तो इस सब्जेक्ट में FMA में आद्या नाम की स्टूडेंट फेल है। ऐसे हो सकता है, काउंट इफ करके आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। इवन यू कैन काउंट ब्लैंक स्पेसेस। Okay, suppose in between there is blank space, then also you can count those blank spaces. For example, काउंट ब्लैंक किया आपने और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लैंक के भी रो मैंने सिलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4, ये 4 ब्लैंक है, तो 4 यहाँ पे दिखता है। ये सिलेक्शन में ब्लैंक कौन से है, ये ब्लैंक है जिसको मैंने रेड किया, ये 4 सेल ब्लैंक है। थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। ये सिलेक्टेड सेल्स जो है वो ब्लैंक है, वो 4 है, तो ये दिस इज हाउ, सपोज आई विल चेंज द रेंज, ये रेंज ही मैंने चेंज किया, इतने ब्लैंक बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6, सो दिस 4 प्लस दिस 6 10 आंसर आना चाहिए। काउंट ब्लैंक आर 10। दिस इज हाउ यू कैन काउंट blanks in the given range also. Then count a function you can use to count alphabets or range numbers of cells in the range that are not empty, जो blank ही नहीं है, ऐसे सेल सिलेक्ट करना है आपको। जैसे यही रेंज आपने सिलेक्ट किया, तो इसमें 4 ही ब्लैंक है, बाकी सब नंबर है, एम्प्टी नहीं है, मतलब 8 नॉन एम्प्टी है, तो ये आ गया नॉन एम्प्टी 8। इज इट क्लियर? count if, count blank and count a, ये फंक्शन समझ में आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next is some mathematical related. Here also you can find out those mathematical and trigonometry related functions. So some ABS, sine, ceiling, floor, such type of functions you can find out here. Okay, so this will returns absolute value of the number without sign. अब यहाँ पे हमने साइन का नंबर लिया ही नहीं है, we will apply this somewhere there is some negative values are there, जैसे यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज है। सपोज आई विल अप्लाई ABS to this negative value, then also irrespective of symbol it will just display the value. This is use of ABS. Okay, so here also you can use this ABS and all the same value minus, so it will return the value. अब आपको सिर्फ साइन चाहिए, तो it returns sign of the number. If number is positive it will return 1, if number is negative it will return 0. अब हम पहले यहाँ का ही कोई नंबर लेके देखते हैं, ये पॉजिटिव नंबर ही है यहाँ पे 1 पे, और ये -80 यहीं पे लिख देते हैं। चलो अब मैंने ये सेल चेंज किया एंड -80 डाल दिया, so it is returning -1 instead of 0. in some systems it may return -1.
तो ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या सिंबल है इसका. ओके, देन you can use ceiling function. Okay, ceiling, this is used to round number at up. मतलब अपर लेवल पे अगर आपको नंबर राउंड करना है तो आप सीलिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं. ये डेसिमल्स को 84.33 है यहाँ पे, तो ये नंबर हमने सिलेक्ट किया. इसका सीलिंग वैल्यू आता है 3 वैल्यूज. इसका 3 वैल्यूज को ऊपर करके 87 राउंड कर दिया. जैसे हम 87 हो 88 हो तो उसको भी 89 90 करना चाहते हैं, तो ऐसे ये सीलिंग हो गया. 84 का 85 86 87, बट मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंस 1 ही रखना है, तो ये 84 का 85 हो गया. इसको ये नियरेस्ट मल्टीपल नंबर्स में आप सीलिंग कर सकते हो. सिग्निफिकेंस के साथ आप इसको बढ़ा सकते हो. राउंड फिगर कैसे करना है वो राउंड अप बढ़ा सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको ये 4 वैल्यूज दिए तो 88 हो जाएगा. 5 वैल्यूज 85. so significance it is not accepting 5 values. up to 4 you can assign these values. 5 दिया तो भी 85 ही होता है. 4 दिया तो 88 होता है. एंड 1 दिया तो भी 85 होगा. तो 4 के आगे कोई भी वैल्यू वो 1 ही कंसीडर करेगा. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन राउंड अप द वैल्यू. डेसिमल वैल्यू अगर आपको करना है तो. एंड फ्लोर अगर यूज करना है आपको तो सेम नंबर देना है, तो ये भी राउंड अप के लिए यूज करते हैं. एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू देनी है तो ये एक नंबर नीचे आएगा. फ्लोर में 84 आ गया. अभी आप ऐसे ही इसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू चेंज करके 2 3, तो ये 84 के नीचे जाएगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू उतनी है. ओके, सो 85 सिग्निफिकेंस पे ये काम कर रहा है. So this is how you can use floor. Okay, ABS साइन सीलिंग एंड फ्लोर. सीलिंग एंड फ्लोर ये राउंड के लिए यूज किए जाते हैं. नंबर आपको राउंड अप करना है तो आप अपर लेवल पे अगर राउंड अप करना चाहते हो तो सीलिंग यूज करना है. लोअर लेवल पे अगर करना चाहते हो तो फ्लोर यूज करना है. उसमें आप सिग्निफिकेंस भी यूज कर सकते हो. ठीक है, देन यू कैन यूज ट्रिम. Now trim, as the name suggests, it is used to trim the spaces. It removes all the spaces from text string. आपने कोई टेक्स्ट लिया है और उसमें अगर स्पेसेस है तो वो सारे स्पेसेस रिमूव कर देता है वर्ड्स के बीच में. जैसे हमने यहाँ पे टाइटल लिया है कॉमन फंक्शंस फॉर डेटा एनालिसिस, तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस है नहीं. चलो हम यहाँ पे स्पेसेस डाल देते हैं. ये देखो टाइटल कैसे दिख रहा है. इधर स्पेस है, इसके बाद यहाँ पे भी स्पेस है. फॉर डेटा एनालिसिस थोड़ा यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाल देते हैं. तो इतने ज़्यादा स्पेसेस है, फिर भी सारे स्पेसेस रिमूव करके अगर आपको वो टाइटल देखना है तो इट विल लुक लाइक दिस. कॉमन फंक्शंस एक एक सिंगल स्पेस के साथ ही वो दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिम फंक्शन, और दिस इज हाउ ट्रिम फंक्शन कैन बी यूज्ड. Then next function is value, which converts a text string that represents a number to a number. For example,
अभी हमने सीरीज क्रिएट किया था IMRDA 01 जैसे, या फिर यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे कहीं पे रुपीज होगा, हाँ यहाँ पे है रुपीज, तो इसको आपने एंटर किया तो रुपीज है, बट आपको बस 2300 वैल्यू चाहिए उसकी, तो आप उसमें वैल्यू यूज करो, आपको दिखाई देगा 2300। ओके, उसका रुपीज नहीं दिखाई देगा। तो वो वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए आप कर सकते हो यूज या IMRDA 1994। नाउ ये यहीं पे यूज करना था, इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग should get converted value of text no, it's not displaying this value. ये जनरल टाइप है, इसको नंबर टाइप में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि this can display value of a text string that represents a number to a number। तो नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है, इसलिए उसका फॉर्मेट नंबर को चेंज करना पड़ेगा। So it's not accepting, let me check, इसका है करेंसी, value of this number, इस नंबर को ले रहा है वो। Value of text it is accepting। Suppose it will be any date, first October 2021, and then I'm going to change its, check its value, then it will display the value
like this. So it recognizes some format, number, date या time format, इसको ही ये recognize करता है. एक तो नंबर फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं तो डेट फॉर्मेट होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट होना चाहिए. जैसे टाइम फॉर्मेट हमने नाउ में लिया था, यहाँ पे कहीं पे we can get value of this. So this is equivalent numeric value of date and time now. Then next function is clean functions. नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो है वो अगर रिमूव करने हैं टेक्स्ट में से, तो वहां पे आप क्लीन फंक्शन यूज कर सकते हो. ये स्पेसेस प्रिंटेबल है तो एज इट इज इसने दे दिया स्पेसेस भी. अब इसमें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे ये ब्लैंक स्पेसेस है, क्लीन. So it cannot set this much range actually in this cell. यहाँ पे हम कुछ डबल कोड दे देते हैं. Stick any different value.
ये एक्स्ट्रा स्पेसेस कैरेक्टर्स जो है वो ट्रिम करते हैं इसमें से, और जैसे यहाँ पे ट्रिम यूज किया तो ट्रिम एंड क्लीन एक साथ यूज करेंगे हम। देन क्लीन, and then we will be using G2. So this is clean and no extra space. So it is like using trim specifically, and this double quote and special characters depends on which type of system you are using also. ये 7 बिट ASCII कोड पे काम करता है 0 through 31, और 32 बिट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग काम करता है ये। यहाँ पे ये डबल तो नहीं होगा, बट जब आप प्रिंट करोगे तो वहां पे आप क्लीन कर सकते हो इस टेक्स्ट को। तो प्रिंट करने के लिए डबल कोट रिमूव हो सकता है यहाँ पे, और रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस चाहिए आप, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो क्लीन एंड ट्रिम कॉम्बिनेशन। जहाँ पे पहले ही यहाँ पे कहीं पे दे दिया है स्पेस ऐसे, तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। क्लीन से देखो, बस क्लीन से एज इट इज आ जाता है, ट्रिम से ये पहले वाला लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस भी रिमूव हो जाता है इसमें, क्लीन एंड ट्रिम कॉम्बिनेशन में यूज करने से। एंड देन देयर इज स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट, एनी नंबर स्क्वायर रूट यू कैन कैलकुलेट सिंपली। जैसे आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो वैसे स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 45 उसका 6.70, ऐसे ही आप डायरेक्टली नंबर भी असाइन कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 12. Like this you can use square root function also. Now there are last two functions, if function and SUMIF function. How you can use SUMIF function I will show you first. Suppose there is data like this, जैसे हमने महाराष्ट्र इसका पायोट टेबल्स का भी डेटा लिया था, यहाँ पे है वो SUMIF। पायोट टेबल्स के लिए डेटा लिया था फ्रूट नेम्स, सेल्स एंड स्टेट। वैसे ही यहाँ पे एक डेटा है कैटेगरी ऑफ फूड्स एंड सेल्स। ओके, तो कैटेगरी में वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिर यहाँ पे कैटेगरी दिया ही नहीं है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अलग अलग वेजिटेबल्स फ्रूट्स है और उनके सेल्स अमाउंट दिए है। सो वी कैन यूज फ्रूट्स सम, जस्ट फ्रूट का हमें सम चाहिए तो we can specify, we can use sum if, okay, and यहाँ पे चेक करना है, पहला रेंज देना है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये पहला कॉलम जो है कैटेगरी, वो कैटेगरी होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया देना है आपको, कैटेगरी होना चाहिए फ्रूट्स, और थर्ड देना है कि तो अगर ऐसा है तो आपको सम करना है सेल्स अमाउंट का, इस रेंज का, ये रेंज है सेल्स का, तो जहां जहां पे फ्रूट्स है उसका सम होना चाहिए। तो फ्रूट्स कहाँ पे है, ऑरेंजेस 800 एंड फ्रूट्स 1200, टोटल 2000 यहाँ पे आ गया, 1200 प्लस 800। ऐसे ही वेजिटेबल्स का अगर आपको चाहिए तो सम इफ कैटेगरी इज वेजिटेबल्स, तो कैटेगरी का रेंज सिलेक्ट करो, उसकी वैल्यू दे दो वेजिटेबल्स
एंड देन सम चाहिए आपको सेल्स का। सेल्स के कॉलम्स को सिलेक्ट करो, रेंज सिलेक्ट किया आपने। वेजिटेबल्स का सम 12,000 आया है, देखो 4,200 यहाँ पे आप करके देखो, 4,200 प्लस 5,500 प्लस 2,300 प्लस 4,200, तो 12,000 का सेल है। तो ये वेजिटेबल्स आ गए। अब नो कैटेगरी वाला कुछ है क्या? है, बटर है नो कैटेगरी वाला, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। सम इफ ब्लैंक देना है, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट किया, फिर से मैंने रेंज criteria is blank, so I am giving single space and then some range again sales, तो सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है फाइनली। नॉट स्पेस ऑल्सो, स्पेस होगा तो भी वो कैटेगरी कंसीडर होगा। सो विदाउट स्पेस जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना है। ओके, नाउ जस्ट यहाँ पे फूड आइटम्स देखो, यहाँ पे है टोमेटोज, सेलेरी, ऑरेंजेस, तो ई एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ई एस है एंड में, एप्पल्स में भी है, तो ऐसे एंडिंग विथ ई एस वाले चाहिए आपको। सम इफ, अब यहाँ पे सम इफ में चेंज हुआ है कि कंडीशन आप कैटेगरी के लिए नहीं फूड के लिए दे रहे हो, तो रेंज फूड का सिलेक्ट करो, फूड। ओके, और उसका एंड पहले कुछ तो कैरेक्टर्स होंगे और लास्ट में होगा ई एस, ऐसे ई एस से एंड होने वाले फूड आइटम्स का सम चाहिए आपको। सो इट विल गिव यू 4,300, तो चेक करके देखो ई एस से कौन कौन से है। एप्पल्स प्लस, ऑरेंजेस प्लस टोमेटोज, हो गया 4,300। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज सम इफ। ऐसे ही हमारा जो पहले का एग्जाम्पल था पायो टेबल का, उसमें भी आप सम इफ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है डायनामिक जब कर सकते हो। आपको चेक करना है जनवरी का यहाँ पे सेल कितना है, तो मंथ में आपको जनवरी चेक करना है, तो सम इफ कहाँ पे चेक करोगे? मंथ का रेंज, मंथ का रेंज है तो रेंज सिलेक्ट करो, ये मंथ का रेंज है। क्या चेक करना है? जनवरी, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो। क्या चेक करना है हमें? ये वैल्यू, ओके, दैट इज जनवरी वैल्यू। और किस चीज का सम करना है? अगर जनवरी महीना है तो सेल्स का सम करना है, जनवरी का सेल्स टोटल कितना हुआ है। तो दिस इज हाउ इट विल शो यू 62, तो आप चेक कर सकते हो 2 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10 एंड प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 2, 62, तो उतना ही आएगा। वैसे ही हर जगह पे आपको सम इफ जिधर जिधर करना है। मंथ का रेंज जो है वो मंथ्स का है, ठीक है, और उसमें आपको चेक करना है उस मंथ में, ये महीना फेब है और इसमें सम करना है सेल्स का। 36 सिमिलरली इस महीने के लिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। मार्च के बाद हमने, ये मार्च का हुआ, मार्च के बाद हमने अप्रैल का किधर भी दिया नहीं, तो आप डायरेक्टली सम इफ ये महीना अप्रैल है तो
सेल्स का सम करो, तो ये 25 आ गया इसका। इसको आप अप्रैल का टाइटल दे सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सम इफ। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes. सबके लिए क्वेश्चन है? अदिति, Yes, ma'am. अंकिता, Yes, ma'am. मोनिका, Yes, ma'am. and Samiksha, Shubham. Now there is one more interesting assignment, that is if only if, how to use only if, and we can use it for different assignments, like whether if you want to check movie if its revenue is greater than 100 or less than 100, ऐसे कंडीशन डाल के तो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली एंड यू कैन गिव द आउटकम। तो ऐसे ये आउटकम आता है ये कंडीशन यूज करके। तो ये हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे इफ कंडीशन, क्योंकि टाइम हो गया अभी, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं अभी, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। डाउनलोड द अटेंडेंस and now I can stop here. Okay, I am ending the meeting. You can leave now.